it is becoming more and more dynamic, and there is need for interdisciplinary approach. So we have started the School of Law. We have provided different courses so that students can prepare themselves, because at this current situation, a lot of situations and a lot of problems have to be sorted out legally. We see problems happening every day in our society. So MIT ADT School of Law has started providing new courses. I'll just mention a few, the ones which are very much important under School of Law. There are different institutions as well. But under School of Law, we are providing BBA LLB course. Now, BBA LLB course is after 12th standard. It is a 5-year course, which is an integrated course where you will be getting 2 degrees: BBA, Business Administration, and LLB. The second course which we have started, it is LLB, Bachelor of Law, which is after graduation. It is a 3-year course. We also have Master Program. It is a 2-year course, LLM. And we are also providing the postgraduate diploma in certification in legal journalism. So we are also providing, that is a 1-year course, you can do it online as well. So that is also which we are providing. Along with that, we do also have a PhD program where people can enroll for doing PhD in law. We have 2 specializations in master program. One is intellectual property rights, which are linked to patents, copyrights, geographical indications, etc. And another specialization in cyber law, because specifically after Corona, cybercrime has increased a lot, and there are a lot of people who require experts who are experts at cyber law as well as cybercrime, both of them. So these are all the new courses which we have started, and I hope that majority of the students do make use of such courses and do graduations in the field of law, which will really help them, not only themselves but also our society, because law just not financially but also socially very much important to each and every individual. I'll just hand over the mic to Professor Subrata sir. He'll just carry forward. Thank you. I'd like to highlight a few major points about the career opportunities in the law. As we have started this course, and as my colleague has already elaborated about the various activity, or you can say the courses offered by the MIT ADT University School of Law also, which we have started. Now, talking about the career opportunities in law, now each and every individual nowadays require one lawyer. Always you will see now that you require one family doctor and you require one lawyer. There is now a need everywhere. Everywhere you can say that you should have the knowledge of law everywhere. So it has become a need that so our university has focused on that we should also offer the courses of law. And here you will see that as a career opportunities in the law also, though many opportunities have been increased, you will say there is now legal courses outsourcing where people can directly go to the multinational companies. There is also, you can see in the legal department of each and every banks, corporates, everywhere there is a need of a lawyer. Also in the practice field also, lawyers, there is a high demand if you have that quality of legal education, which we are providing over here. So in the field of criminal law, civil law, everywhere, definitely a good lawyer is always required. Also, I would like to state over that in case of taxation matters also, I have seen that these paralegal courses are very, very effective, which will include the diploma in taxation laws. Now we have course of LLM in intellectual property law, cyber laws. Also in GST litigation, I have seen that especially in the high courts and tribunals, that is called as the ADRs, alternative dispute resolution systems, which are being developed and which have been gained so much of importance that many of the chartered accountants, company secretaries, now they are also coming into legal field, because there is a huge scope for practice in the field of say GST litigation, income tax litigation. We have tribunals, that is the appellate tribunal, there you can go in appeal to the high courts as well as the Supreme Courts also. So the need of the lawyer is everywhere, it is necessary. It is not that I am into some another course, I should not do law or should not study law. Definitely everybody, I will appeal over here that you should, there is a need to have a lawyer at home, and you should have a legal knowledge at least. So that's why we, as a career opportunities in the law, I will definitely say that please do join us for this
as we are imparting good quality legal education in our School of Law, MIT ADT University School of Law. I would like to thank everyone for. I will just hand over the mic to Chandrakant sir. To the question and answers, I would like to talk about the campus. See, our campus is widely spread across the 130 plus acres, and it is known for the legendary actor Raj Kapoor ji, because it has the name of a Vishwaraj campus. So why it is because it has earlier before our founding father Vishwanath Karad sir, they purchased the land. Before that, it has been owned by the legendary actor Raj Kapoor ji, and there he has the studio named as the Raj RK Studio. It is also situated in the Mumbai, but earlier it was there in that campus. Many I don't remember because I don't belong from that generation, but I have heard that more than the 15 films and some scenes of the films have been shot there at the same campus. It is a very beautiful campus which also has the world largest dome, which has the height of 180 meters. So these are also one of the specialties and unique capabilities of our campus. Also, we had the many sports infrastructures and many other things. As you all know, or you must have been heard that MIT is known for the engineering colleges, because the first private engineering college in the Maharashtra have been formed by the Dr. Vishwanath Karad sir in the 1984 in the Pune. So after that, Dr. Mangesh Karad sir, who is the executive president of our institute, has decided to go beyond this specialty, which is the engineering. So this is why they have focused and formed the university under the name of Art, Design and Technology. So we have the courses in the field of art, design and the technology. So technology also contains the engineering branches, design contains the architecture, civil and many other things. So one more specialty about our campus is we focus upon the holistic development of the students, because as you all know, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको मतलब वो बहुत होशियार होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी होती है, बट हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाला स्टूडेंट के पास में क्या होता है कि ही विल बी अ वेरी गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज वी गिव देम द वैल्यू, वी आल्सो गिव देम द कल्चरल वैल्यूज ऑफ आर वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड मेनी अदर थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंपस ऑल्सो. सो taking the opportunity from this press conference, I would like to invite all of you to once come to the Pune. आप कभी भी आप अगर पुणे में आए तो एक बार जरूर से कैंपस को विजिट करिएगा. आपको सभी को मैंने कार्ड दिया हुआ है, so you can directly contact to me and definitely visit and witness the world's largest dome and many other things. Great, thank you so much for coming, and we can directly move forward with the questions now. If you have passed out 12th, okay, there is a course of BBA LLB, okay, 5 years course, as well as BLLB also course is there for 5 years. So you can complete law by after 12th, after 5 years means. So you will get the degree of law. There also, if you pass out law, you have to take. If you want to go in practice, you have to take sanat from the Bar Council, okay, and then you can start with your practice either in any of the court, district court, high court or supreme court also you can go. So if you want to stand in the courts, you have to take sanat. This is one of the options. Now there is a number of options in the legal field just now. You can be a very good lawyer in case of land matters, in case of civil, criminal, family courts. Then corporate lawyers are also being required. Then you have, as I told you just now, also direct taxes, indirect taxes, in taxation, litigation. Any litigation part also, a very good lawyer is required. लॉ की पढ़ाई के लिए उसकी फीस की लिमिट कितनी होती है? सर ये तो यूनिवर्सिटी मैटर करता है, तो हमारी जी फीस स्ट्रक्चर बता दें. बिल्कुल, देखिए अगर आप 5 ईयर कोर्स पर जाते हैं BBA LLB, तो जो फी है वो पर ईयर 3 लाख रुपीज पर एनम है, हर साल का 3 लाख रुपए. बट वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड. तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसी का,
तो अगर कोई बच्चा 12th स्टैंडर्ड में 90% या अबाउट आता है, इट्स कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड, तो 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो डायरेक्टली जो फी होती है वो बन जाती है 1,50,000। उसके बाद अगर कोई बच्चा 75% लाता है, 70% लाता है, तो उसको 40% स्कॉलरशिप है, तो फी बनती है 1,80,000। तो ऐसे हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है बच्चों को। ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं होता, बट स्टिल उसके फैमिली में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों से कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखिए, आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या है, एंड वी डू सेंड दैट एप्लीकेशन टू आवर टॉप मैनेजमेंट एंड दे डू टेक अ डिसीजन इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट। हम यही देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन हमारे इंस्टीट्यूशन से मिले, तो हम पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हम उसको लोन देने में भी हेल्प करते हैं। सो वी डू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प ऑल्सो, कि वो इंस्टॉलमेंट में पैसे भर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आप जब तक पूरी फी नहीं भरोगे तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वी अंडरस्टैंड मनी इज अ बिग इशू फॉर लॉट ऑफ पीपल, तो हम पूरा कोशिश करते हैं अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप, अगर उसको और हेल्प चाहिए तो हम करते हैं सर। कुछ फीस माफ करते हैं आप? हाँ जी, स्कॉलरशिप के अंडर हम जैसे मैंने बताया माफ करते हैं, मतलब व्हाट लाइक आप क्या विदाउट पेड लोन के बिना? सर लोन के बिना भी हम जैसे मैंने बोला इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, पूरी तरह से माफ आप बोल रहे हो कि जीरो, ऐसा नहीं है सर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% कोटा है हमारे पास, तो उसके अंदर जो हमारी पॉलिसी है, जो यूजीसी फॉलो करती है, उसके हिसाब से हम करते हैं। यस सर, जैसे मैंने बताया, सर ने भी बताया कि MIT इज अ वेरी वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी। या एग्जैक्टली, तो हमारे यहाँ पे तो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेंटर है, जहाँ पे सारे हम HR लोगों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स बन चुके हैं कि आपको कौन से लोग चाहिए। तो कोई बोलता है मुझे 4 इंजीनियर चाहिए, कोई बोलता है 2 लॉयर चाहिए, कोई बोलता है मैनेजर चाहिए। तो उनकी HR पॉलिसी के हिसाब से कि हमको इतना परसेंटेज या इतने मार्क्स या इतने सर्टिफिकेट्स होंगे तो बच्चा एलिजिबल बनता है। तो जो जो बच्चे उसमें एलिजिबल होते हैं सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं, मेल करते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इनका इतना पैकेज है। तो बच्चा जो है उसको व्हाट्सएप पे, उसको मेल पे हम और पर्सनली भी हम जाके बताते हैं बच्चों को, तू एलिजिबल होता है तो तू अप्लाई कर ले। तो जितना ज्यादा उसका प्लेसमेंट हो सकता है उतना अच्छा है। अभी लास्ट ईयर द मैक्सिमम पैकेज वो 71 lakhs पर एनम मैडम। तो MIT की ब्रांड है, बच्चा कैसा पढ़ता है, उसके मार्क्स कैसे हैं, उसके बेसिस के बाद उसको प्लेसमेंट होती है। हाँ जी, मैं थोड़ा सा सर ने होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बताया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि 2020 में गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास की थी, जिसमें ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कोर्सेज हैं BBA, LLB, उसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या है? बच्चा लॉ के साथ फॉरेन लैंग्वेज सीखता है। हमने ऑप्शन दिए बच्चों को कि आप ये 4-5 ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड, देयर इज आल्सो एन ऑप्शन फॉर क्रिएटिव आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब इट कैन बी रिलेटेड टू डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्केच, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में के जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स है उसमें से वो कर सकता है। उसके अलावा हम हेल्थ प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड करते हैं कि बच्चे को हफ्ते में 1 दिन 2 घंटा मैंडेटरी उसको फिजिकल एक्टिविटी सिखाया जाता है, ग्राउंड फिटनेस, जिम में एक्सरसाइज कैसे करते हैं। उसके अलावा सूर्य नमस्कार, वही कई बच्चों को फिटनेस का कुछ पता नहीं है कि सूर्य, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा। एंड जैसे सर ने बताया इतना बड़ा 125 एकड़ से ज्यादा हमारा कैंपस है। पीछे तो नदी है, बुढ़ामुठा नदी जाती है, जहाँ पे रोइंग के स्पोर्ट बच्चों से ट्रेन किया जाता है। मैं खुद रोइंग करता हूँ, आई एम माई सेल्फ प्लेयर, मैं खुद आर्चरी खेल चुका हूँ। मैं खुद पिछले 3 सालों से मैं खुद पिछले 3 सालों से 2022 से 24 से इंडोर आर्चरी में नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ और हूँ, अभी भी खेलता हूँ आर्चरी। तो ऐसे हम क्यों? बिकॉज दिस फैसिलिटीज आर देयर इन MIT में आर्चरी है जो आप नहीं देखेंगे। आर्चरी है, बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, टेनिस है, कबड्डी है, खो खो है, हॉकी है, क्रिकेट है, क्रिकेट तो होता ही है, फुटबॉल है, और इन सभी चीजों को कोच है। इट्स नॉट दैट कि बच्चे जाके खेल रहे हैं। एवरी स्पोर्ट हैज अ कोच जो उस बच्चे को गाइड करता है, ताकि हम उस बच्चे को नॉट ओनली इंटर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी लेवल तक या स्टेट लेवल तक, ताकि वो बच्चा इंटरनेशनल तक खेल सकता है। और ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं, इवन स्टाफ मेंबर्स को भी, जैसे मैंने खुद कहा मैं करता हूँ, तो हमको भी वो सपोर्ट करते हैं। बिकॉज होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों के साथ हमारी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी तो मेंटल हेल्थ और सब इम्पोर्टेंट है, तो वो भी सारे फैसिलिटीज है, स्विमिंग पूल है, जिम है ना। हाँ जी, मैंने जैसे बताया वी हैव अ 1 year कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन लीगल जर्नलिज्म, जी उसकी फी है 30,000 रुपीज। वो 1 साल का होता है, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, शाम को 1 घंटा 3:30 से 4:30 के बीच में 1 घंटा ऑनलाइन सेशन होता है, मैं खुद पढ़ाता हूँ। सो लीगल जर्नलिज्म बेसिकली, अब जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, लॉ का थोड़ा सा नॉलेज कम पड़ जाता है, तो कभी कभी डिफेमेशन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जो कि विच आर रिस्ट्रिक्शंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देमसेल्व्स। तो हम ये बताते हैं कि भाई आप जब लिखते हो तो लीगली करेक्ट कैसे लिखें,
क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है इधर का उधर हो गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस, फिर अपॉलॉजी लेटर ये वो केस बन जाती है, फिर एडवोकेट लगेगा आपको। तो इससे अच्छा है कि अगर पहले से अगर वो लीगली आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, तो दैट इज एनी टाइम बेटर। हाँ सर। हाँ जी। सुझाव कैसे? सर मैं इवन तो लॉ प्रोफेसर हूँ, मेरा बेसिक ग्रेजुएशन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके मैंने LLM किया हुआ। तो सर मैं साइबर लॉ खुद पढ़ाता हूँ, तो हमारी प्रिंसिपल मैम सपना, डॉक्टर सपना मैम, वो भी ऐसी हैं कि जो साइबर में एक्सपर्ट है। तो ये रियलाइजेशन ऐसा है कि डिमांड बहुत है मार्केट में। हमने ये स्टडी किया क्योंकि मैं जैसे साइबर क्राइम्स बढ़े 200 टाइम्स साइबर क्राइम बढ़ गए थे लॉकडाउन के समय पे, बट देयर वर नो एक्सपर्ट्स। मतलब उनको लॉ पता है, टेक्निक नहीं पता, जिसको टेक्निकल पता है उनको लॉ नहीं पता। तो ये जो साइबर लॉ का जो कोर्स है उसके अंदर नॉट ओनली इंडियन लॉज बट ऑल्सो हमने इंटरनेशनल लॉ का कॉम्बिनेशन करके कि हमारा लॉ स्थापित कैसे हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है और प्रॉब्लम्स क्या है, ये पूरा मिलकर एक पैकेज है 2 साल का साइबर लॉ का। क्योंकि आप देखेंगे कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, क्राइम में आपको हर इंस्टीट्यूट में ये स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। साइबर लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये बहुत रेयर है। तो इसलिए इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स ना है। फ्यूचर तो यही है साइबर, फ्यूचर तो आप सबके हाथ में मोबाइल है, सब रिकॉर्डिंग कर सेक्शंस होते हैं जी। जी साइबर लॉ में अगर आप मुझे IT एक्ट बोलेंगे तो इट इज अराउंड 80 to 90 सेक्शंस आर देयर। इट्स अ स्मॉल एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज द बेसिक एक्ट। वो बेसिक एक्ट है, 2008 में उसका अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन अभी 2024 चल रहा है, फिर भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। दैट्स अ सैड पार्ट एंड द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस सो मच कि प्रॉब्लमेटिक हो गया है। श्रेया सिंघल करके एक केस थी, मैं जरूर कहना चाहूंगा, उसमें एक सेक्शन 1066 करके उसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि उसके अंदर की जो वर्डिंग थी वो वेग थी कि कोई भी कुछ भी लिख देता था, मतलब किसी इंसान के, किसी कम्युनिटी की फीलिंग्स, देखो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया फीलिंग्स, वो अगर हर्ट हो जाती है तो दैट इज वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन। तो वो हटा देने के बाद आप आज देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, यू कैन सी दैट हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग बैड लैंग्वेज एंड देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेस। तो कई बार ऐसा रियलाइजेशन आया कि वो सेक्शन हटाया जरूर, बिकॉज समटाइम्स गवर्नमेंट वाज यूजिंग इट अगेंस्ट जर्नलिस्ट हु स्पीक अबाउट द गवर्नमेंट इन जो क्रिटिसाइज करते हैं, तो हटा दिया गया। लेकिन अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप देखोगे सोशल बुलिंग या साइबर बुलिंग जो चल रही है, कि हार्दिक पांड्या का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि IPL में मतलब प्लेयर है यार, वो क्या कर रहे हो, यू नो, अभी सडनली देयर इज सिंपैथी, सडनली देयर इज, अभी उसका डिवोर्स होने वाला था वो भी नहीं हुआ, मतलब क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेस, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। इसलिए आई पर्सनली फील दैट वी डू नीड चेंजेस इन साइबर लॉ। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी आने वाला है कि हमारा डेटा ही मार्केटिंग एजेंसी में हमें कहाँ से भी कॉल आता है, इंश्योरेंस ले लो, कैसे आ रहा है, हाउ एनीबडी कैन जस्ट गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी, दैट पर्सन नोज माय नेम, माय एज, माय जेंडर, दैट पर्सन नोज माय अबाउट माय एवरीथिंग एंड देन दैट पर्सन इज सेइंग इसको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ सकती है, मेडिकल, हेल्थ, फोन आते हैं, इनके पास हमारे नंबर जाते कैसे? इट्स अ टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके लिए प्रोटेक्शन, हमारी प्राइवेसी जो हम इंडिया में बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, बट इन द कमिंग फ्यूचर प्राइवेसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप गूगल कीजिए सर, आप सिर्फ गूगल कीजिए, जैसे शूज खरीदना है तो आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सारे शूज के ऐड आएंगे सर। No, one more thing is that now we need the protection for, that is security against every measures, I will say. First, you must see now the way the artificial intelligence is going further. Everybody is now going to have a major challenge is to right to privacy of the person, because everything is being cracked outside now. Here also you will need the law, okay, for artificial intelligence. You have seen the chat GPT, the chat bot, and what is now, it is been going on just now, where we are moving now. It is necessary to have cyber security everywhere, right to privacy everywhere. Now the next, if you see the NEP also, the policy, definitely they are going to change many things which will come in next 2 years, I will say. So it's a challenge, and definitely it's a challenge to the law also, because you have to frame. Now one more thing, which the bills have been already been introduced, the 4 bills, that is the CRPC Act is now going to be gone now. So everywhere the changes have started already, and so these codes have been there, and these are the changes which we are also implementing in our law courses also. So the thing is that definitely everybody should have such kind of knowledge, and the courses and all these things
which we are also implementing according to the national education policies, which is also very important for everyone now. So this should be traced, as sir has stated rightly, that many cyber securities and cyber laws, intellectual property law, then taxation laws and all other subsidy courses are also need to be implemented. I also seen one course called FinTech laws. It's very interesting course where all the finances and you must have seen after the budgets also many of the people go through behind all kinds of the policies of the government. So how to read it? That is also one of the very important part and parcel of the legal education. It comes under legal also. There is innovation, yes. Yes. But mostly people don't want to be an advocate or even a doctor, because normally that's what's happening is it's commercialized. It's a part of, I think it's just a part of life. But in our course, we do have a subject called professional ethics, which has been implemented. Bar Council of India has introduced this particular subject, which they have made mandatory, professional ethics. So in that, we at least try to create awareness among the students that not like money is not everything. Certain cases, if such cases come, just avoid. See, this is what we can only tell the students. But at the end of the day, when the person goes outside the college, survival is a matter, he will take any case. That's a fact, that's a reality. We have to live in a practical world. We can't live in a world which is utopian. नहीं कोई case आता है और अगर वो आपको लग रहा है कि the first thing of any advocate is to protect their client. उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना, उसको जितना अगर पता है उसने क्राइम कमिट की है तो कम से कम सजा दिलवाना, ये किसी भी एडवोकेट का वो काम होता है। ये उसका प्रोफेशनल एथिक है एडवोकेट का, उसको कम से कम सजा मिल जाए। अब वो मॉरली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इट इज ओपन, बिकॉज मॉरलिटी इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी। आपकी मॉरलिटी अलग होगी, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, सो डिपेंड्स। बट हम एटलीस्ट बच्चों को बताते हैं फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है सर। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ ईयर तक बच्चे रिजिड हो जाते हैं, 12th के बाद कैसे बच्चे थोड़े से मोल्ड हो सकते हैं, तो हम करने की कोशिश करते हैं सर। बट सोशलाइजेशन प्रोसेस, पेरेंट्स का इम्पैक्ट, फ्रेंड्स का इम्पैक्ट और हमारा टीचर्स का इम्पैक्ट, ये सब मिलकर एक बच्चा बड़ा होता है। सो अल्टीमेटली वो क्या डिसीजन लेता है वो तो उसकी चॉइस है। बट व्हाट एटलीस्ट वी एज टीचर्स वी ट्राई टू ब्रिंग अबाउट एथिक्स इन द स्टूडेंट्स। अभी जो बारे में आपकी तैयारी, यस, वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। जैसे CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों लॉज रिप्लेस होने वाले हैं नए लॉज से। ये तीनों लॉज चेंज होने वाले स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्राइम। तो हमने क्या किया हुआ है, अभी जो हमारा सिलेबस है, पुराना सिलेबस पूरा हमने चेंज कर दिया, पूरा हमने नया सिलेबस बनाया है जिसमें हम ये नए लॉज पढ़ाएंगे। एज पर न्यूज़ 1 जुलाई से ये स्टार्ट होने वाला था, बट देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि थोड़ा पोस्टपोन कीजिए क्योंकि ऐसा इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ हो सकती है। तो देयर आर पिटीशंस फाइल कि आप थोड़ा सा डिले कर दीजिए, लेकिन लेट्स वी हैव टू सी। इसमें और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि the with effect from date, that is the retrospective and prospective, that will be the biggest challenge to government also. So cases which are been pending in the courts, which laws are to be now after 1st July, whether they are going to continue or not, that is the biggest question. Okay, so that's why it might delay also. डिले हो सकता है, हो सकता है। हमने हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम उनको नया सिलेबस बनाने वाला है, पुराना वाला नहीं। अब हुआ ऐसे कि जो पिछली बैच थी वो बोले सर हमने तो पुराने लॉ पढ़ लिया था, हमको भी नहीं पता था कि ये आने वाले हैं। तो चर्चा हो रही थी, लेकिन सडनली अब हो गया। तो ऐसे हमने ये भी कहा बच्चों को कि अगर आपको बैठना है फिर से उन सेशंस को, आप बैठ सकते हैं। इफ यू हैव टू लर्न द न्यू लॉ, अगर आप इवन दो सेकंड ईयर में चले गए हो या थर्ड ईयर में आगे चले गए हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू सिट फॉर द सेशन दे कैन सिट। तो हमने वो ओपन रखा है फोरम। एंड उसके अलावा भी हम एक स्पेसिफिकली कोर्स रखने वाले हैं बच्चों के लिए फ्री, जिनके लिए ये तीनों सब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ाएंगे 10 दिनों में, पूरा डिटेल ओवरव्यू देंगे, ताकि जो बच्चे अगले साल पास मतलब निकल रहे आगे वो बैठ के भी वो पढ़ सकते हैं। तो ये भी हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन वंस द कॉलेज स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई तब हम करेंगे। See, you must have seen that the GST came in the year 2017. Okay, still it is unsettled law according to us. Why? Because after 7 years now also, still there are near about 2,000 notifications have been come to amend the laws. So in 7 years, if the law is not settled, how we can say that this is a new and it should be settled within 1 day? No, it will take time. और सर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सबको देनी है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाता, इज नॉट एबल टू गिव द MSCT और एनी क्लैट जो लॉ के लिए एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड यू हैव टू टेक एडमिशन बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम।
So we at MIT ADT University, we are providing private entrance exam of our own. हम हमारी खुद की पैरा सीटी कंडक्ट कराते हैं जो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं. So what we do is till 26th of this month you can fill the form for para CET. 28th को एग्जाम होगी which can be given online sitting at your home. आप ऑनलाइन भी दे सकते हो. अगर आपको ऑफलाइन जाके सेंटर पे देना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है. तो आपका सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, आपका हॉल टिकट इशू होगा, आप ऑनलाइन दे सकते हो. 28th को एंट्रेंस एग्जाम है और 26 तक आप फॉर्म भर सकते हो. तो बच्चा जो मिस आउट कर जाता है, जो एंट्रेंस नहीं दे पाता, ये बहुत लो स्कोर है, जिसको नहीं उसको एडमिशन नहीं हो रही है, तो हम डेफिनेटली उस बच्चे को हेल्प करते हैं थ्रू अवर प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम. तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मैं आप सबसे मंथ ऑफ जुलाई में जो एडमिशंस होने वाले हैं जी सर, वो किस तरह से मतलब ऑनलाइन में होंगे या बच्चों को आकर वहाँ पे फॉर्म भर के एडमिशन लेना है, और कितने एडमिशंस होते हैं जिसके बाद से आपका कोटा फुल होता है? जी सर, डेफिनेटली बताऊंगा आपको. जी हमारा BBA LLB के 60 का इंटेक है, LLB का 60 का इंटेक है, LLM का 20 है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीगल जर्नलिज्म 20 है. दिस इज द मैक्सिमम कोटा व्हिच हैज बीन अलॉटेड टू अस. और सर बच्चा ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकता है और वो कैंपस में आके भी ले सकता है. बट डेफिनेटली जब एडमिशन हो जाती है, पहले दिन वो कॉलेज आएगा तो वो अपना फिजिकली आके भी डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर सकता है या ऑनलाइन भी भेज सकता है. तो बच्चा अगर आउट ऑफ स्टेट है, अगर उसको पूना में नहीं है तो उसको डिफिकल्टीज आ रही, तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है सर. 5 साल का जो कोर्स है जी BBA जी इसका लगभग कितना खर्चा है? सर जैसे मैंने बताया स्कॉलरशिप पे डिपेंड करेगा आपके कि आप कितने परसेंटेज लाते हैं 12th के बच्चे का. तो जिस किस पे आपकी स्कॉलरशिप, जैसे अगर मैंने बोला कि 1.5 आपका बच्चे का 90% अबव है तो 1,50,000 होगा इंटू 5. और अगर आपको हॉस्टल की भी अगर फैसिलिटी चाहिए होगी तो वी प्रोवाइड इन हाउस, क्योंकि मैंने बताया, सर ने भी बताया, बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है हमारे पास. 4 हॉस्टल्स हैं, 4 ही हॉस्टल्स को अटैच्ड मेस है. और अगर मेस 500 मीटर भी दूर है तो बस फैसिलिटी है कि बच्चा बस से जाके मेस में बैठ के फिर से खाना खा के और बस उनको वापस छोड़ती है. तो 4 हॉस्टल्स हैं. हॉस्टल की जो फी है वो 1,60,000 है, जिसके अंदर वी ऑल्सो प्रोवाइड फूड, विच इज फूड इज इंक्लूडेड. एंड जैसे मैंने बताया स्कॉलरशिप पे पूरा डिपेंड है सर. LLB का जो स्कॉलरशिप है दैट डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेजुएशन मार्क्स. LLM का जो आपका है उसका स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन LLB मार्क्स. तो आप जितना ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतना ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा. आपका पूरा मेरिट बेस्ड सिस्टम है सर. साइबर लॉ और प्रॉपर्टी लॉ उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल. हाँ सर, देखिए हमारे पास हमारे एक विजिटिंग फैकल्टी है रोहन सर करके, तो वो वही लुक्स आफ्टर इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स, तो उनकी काफ़ी पहचान है. तो हमारे यहाँ पे हम ऑनलाइन सेमिनार्स, जिसको हम वेबिनार्स बोलते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं. इस पिछले ही सेमेस्टर में हमने 2 से 3 वेबिनार्स कंडक्ट करे जहाँ पे फॉरेन फैकल्टी अपनी यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ से वो हमारे बच्चों को नॉलेज दे रहे थे कि नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल लॉ बट ऑल्सो हाउ कैन यू मेक अ करियर इन इंटरनेशनल लॉ. उसमें भी बता रहे थे, क्योंकि हमारे BBA LLB कोर्स में भी ऐसे सर्टेन ऑप्शनल्स हैं जहाँ पे बच्चे सिर्फ इंटरनेशनल लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकता है. और अगर वो फॉरेन लैंग्वेज भी सीखता है तो वो जो कॉम्बिनेशन है कि अगर फ्रेंच पढ़ लेता है और इंटरनेशनल लॉ में स्पेशलाइजेशन करता है तो उसको आगे प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प होती है. कंपनीज चाहती है कि यार इसको तो फ्रेंच आती है तो इसको यूरोप भेज सकते हैं, या जर्मन आती है, स्पेनिश आती है, तो उनको वो प्रीफर करेंगे, तो उसको आगे जाके जॉब मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है. होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. तो आप जो बोल रहे हो, जो फॉरेन की फैकल्टी है वो ऑनलाइन आती है. अभी तक ऐसा नहीं ऑन कैंपस, अभी तक तो सर कोई फाइनल फैकल्टी नहीं आई, बट हमने ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करा है. Yes, and we are planning for this type of. इंडिया या फिर बार काउंसिल महाराष्ट्र गोवा के जो बड़े वकील एडवोकेट्स हैं कभी आते हैं आपके यहाँ? सर बहुत I will tell you my name also. बताइए, बता रहे सर. Bar Council of Maharashtra and Goa, now the especially the president, the chairman of this, he's already been associated with us, okay, and हमारा जो एसोसिएशन है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के जो एडवोकेट्स हैं, सो मोर देन 200 to 300 एडवोकेट्स के साथ हमारा टाइप है. मतलब क्या है? मतलब हम हर बच्चे को फर्स्ट ईयर से उसका सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के बाद उसको हम इंटर्नशिप को भेजते हैं 1 month मैंडेटरी. वो बच्चा हमारे पास आता है, किस में करना है स्पेशलाइजेशन, कोई बोलता है क्राइम में करना है, कोई बोलता है सिविल में करना है, कोई बोलता है लैंड में, कोई बोलता है साइबर में. तो हमारे हर स्पेशलाइजेशन के लिए एक वकील होता है. तो उस पर्टिकुलर वकील के पास हम उस बच्चे को 1 महीना के लिए इंटर्नशिप भेजते हैं. ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है. नॉर्मल कॉलेजेस का क्या होता है, 3rd ईयर ऑनवर्ड चालू होता है.
हम फर्स्ट ईयर से बच्चे को भेजते हैं, तो जब तक वो अगर उस बच्चे ने जेन्युइनली अगर उसने पढ़ाई की, जो हम, क्योंकि क्या होता है कई बार इंटर्नशिप पे जाते हैं बच्चे, नहीं भी जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, सीरियसनेस नहीं दिखाते, पर अगर बच्चा सीरियसली करेगा तो टिल आफ्टर 5 years दैट स्टूडेंट विल हैव 10 इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स एंड द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द फील्ड इन विच दैट स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड। तो एडवोकेट, और फिर तब तक आप जब बाहर निकलते हो तो आपके कोर्ट में जान पहचान भी हो जाती है। आप कोर्ट में जाते आते रहते हो, आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कौन से कोर्ट के कौन हेड्स जज हैं, कौन एडिशनल जज है, हायरार्की पता चलने लगती है। क्योंकि किताबों में आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप कोर्ट में नहीं जाते, प्रैक्टिकल आप जब नहीं सीखते, तब तक बच्चों को समझ में नहीं आता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम जैसे इंजीनियरिंग में बोलते हैं ना इंडस्ट्रियल कनेक्ट, वैसे हम बोलते हैं कोर्ट कनेक्ट की भाई। उसके अलावा हमारे पास मूड कोर्ट भी है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस होती हैं, जहाँ पे मूड कोर्ट मतलब एक रूम होता है जहाँ पे हमने वो आपने पिक्चर दिखा होगा, तारीख पे तारीख पे, वैसे कठेड़ा है, वहाँ पे जज साहब की चेयर है, वहाँ पे वो कानून अंधा होता है, वो स्टैचू जो है जस्टिस वो है जिसमें पट्टी लगी हुई है, कठहरे हैं। तो एक बच्चे को एक कोर्ट का माहौल बनाया जाता है और उनको केस दी जाती है और उनको डिफेंड करना पड़ता है या अटैक करना पड़ता है। तो बच्चा जो होता है, ऐसा नहीं कोर्ट में जाने के बाद अरे भाई मैं कहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता बच्चे को। तो वो जो ट्रेनिंग है वो भी हम स्कूल में प्रोवाइड करते हैं। We have constructed one moot court room in our special college where the trials, how you should argue with the opponent lawyers, that is also been taught. It is called as a moot court. You can say competitions are also been organized. Now you must have seen that all over India just now also maximum national law universities, or you can say the law colleges in all over India, they are organizing these international moot court competitions everywhere. And there the students from our university, suppose 3 students generally are being selected and they have been sent to all our universities where the competitions are being organized. And definitely I will tell you that I have seen in many universities that the judging of those moot court competitions were done by the sitting judges of high courts and supreme courts also. So these kind of exposures the students have been getting everywhere now. Okay, so we also have constructed a moot court room where the students will be from second year itself, they will taught how to argue the case. Okay, and also in our library we have all the softwares how you can trace the case laws. That is the LexisNexis, Manupatra, all these other tools, legal tools where you can search the cases, not cases of district court of any you can say state, high courts of any state, and also Supreme Court cases. मेरा एक सवाल है जी सर। बचपन से वो पट्टी लगा के अंडा खाना न्याय कैसे देते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। मैं आपको इसका आंसर मुझे पता है। उसका मतलब सर मूवीज में उसका मतलब कुछ अलग दिखाया गया है कि अंधा कानून है, दिखता नहीं है उसको। उसका रियल मीनिंग है, उसकी जो पट्टी का रियल मीनिंग है कि जो आदि जज है he has to be non-biased. He cannot have prejudice. Actually, yes. मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो उसका एक्चुअल मीनिंग है। पर मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई साहब अंधा कानून कि दिखता नहीं है उसको। क्या नहीं दिखता? आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका जेंडर, वो नहीं दिखता। तो लॉ इज इक्वल टू एवरीबॉडी। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं या आप जर्नलिस्ट हैं या टीचर हैं, लॉ सभी के लिए समान है। करेक्ट? तो ये उसका एक्चुअल मीनिंग है उस पर्टिकुलर स्टैचू का कि वो पट्टी क्यों है आपको, क्योंकि दैट पर्टिकुलर जज हैज टू बी नॉन बायस्ड, नॉन प्रेजुडिस्ड एंड हैव नो काइंड ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी वन पर्टिकुलर पार्टी। दैट इज द मीनिंग।